demographic study of human populations, in which including study of change in populations and change in size, change in competitions, and change in distribution. It is called as a demographic. Now we will say demography. What is mean by demographic process क्या है वो हम देखेंगे. तो demography, there are 5 processes there. First process is fertility, second process is mortality, third process is marriage, fourth process is migrations, and fifth process is social mobility. What is meant by fertility? Fertility means what? The birth rate of a population. Birth rate कितना है, क्या है, वो हम उसको बोलते हैं fertility. What is meant by mortality? Mortality means what? The number of death rate in one period of a time on in one place. एक जगह पे a one place and one time on a period, it is called as a mortality. Then afterward migrations and social mobility. Then afterward we will study about important of demographic data. What is meant by important of a demographic data? First point, health status of a community depends upon the dynamic relationship between number of peoples, their compositions, and their distributions. Second point, planning of a health service can be guided by demographic variables. For example, how many health units do we need? Then how to distribute them in the community in order to the target populations, and what is a manpower is need. It is called as a important of a demographic data. Now we will see demographic cycles. There are 5 cycles is there. First cycles are a high stationary. What is meant by high stationary? High stationary is a, we will see birth rate and death rate. No any change in a size and populations. It is called as a high stationary stage. It is a first stage. What is meant by second stage? Second stage is a that state that death rate will be decrease and birth rate will be increased. No change in a birth rate. It is called as a second stage. Earlier expansion. What is meant by third stage? Late expansion. We will see. The birth rate begins to decrease. The birth rate begins to decrease. The birth rates began to increase and that rate began to decrease. It is called as a third stage. And the fourth stage is a low stationary. What is meant by low stationary state? It is the fourth state, and fourth state we will see. The state is characterized by a low birth rate and low death rate. It is no change. It is a stable in populations. It is called as a fourth low stationary state. And fifth state is a decline stage. What is meant by decline? In decline state, it is a birth rate low and death rate also will low. Then both are low, birth rate also low and death rate also low. It is called as a decline state. Then we will see method of data collection. What is the method of data collection? There are 2 methods of data collections. First, primary data collection. Second, secondary data collections. First, primary data collection collect is done by the individual by using the method such as observations, interviews, questionnaires, and diaries. What is meant by second data collections? We will see. Second data collection is a registrations of virtual events, demographic study, records, natural surveys. It is called a secondary data collections. Now we will see elements of population. What is meant by elements? Elements of populations: change in size of population, structure of population, geographical distribution, change in competition, distribution. It is called as the elements of population. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. ओके, मुझे होस्ट करो आप अंजलि. नेक्स्ट रोल नंबर 6 प्रेजेंट. रोल नंबर 6. 7 Present, ma'am. Are you prepared? Yes, ma'am. Okay, start now. Ma'am, screen share करो. वेट मैं तुम्हें होस्ट करती हूँ. अंजलि होस्ट करो. मैम मुझे नहीं आता कैसे करना है. एक सेकेंड. पार्टिसिपेंट में जाओ आप. यस मैम. मेरे नाम के ऊपर जो है क्लिक करो. यस मैम मैंने किया. मेक अ होस्ट ऑप्शन आया है.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, so यस much. ओके ओके यस देखो मैंने तुम्हें होस्ट किया है, फिर तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम। मैम स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। नो, अब अभी नहीं शेयर किया आपने स्क्रीन। रोल नंबर 2 प्रेजेंट है। रोल नंबर 2 यस मैम। आर यू आप देख प्रिपेयर? मैम मैंने सोचा था मैम कल रहेगा, तो आज मैं प्रिपेयर नहीं किया। मैं सोचा था। वेरी गुड वेरी गुड। कल क्यों दोगे? अभी आज तुम्हारा एब्सेंट लगेगा, ठीक है? हेलो मैम स्क्रीन मैंने दिख रही लास्ट है? वीक बोला था। यस यस यस, योर स्क्रीन आर विजिबल। ओके मैम स्टार्ट करूं? यस Hello everyone, this is Yash Vishwakarma and I am going to take seminar on the health indicators. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो हेल्थ का मतलब है एक्सेस ऑफ डिजीज एंड इंडिकेटर्स जो है जो कि इंडिकेट करते हैं हेल्थ को। तो हेल्थ इंडिकेटर मीन्स कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंट्री है या फिर मल्टीपल कंट्री है, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of the health indicators. तो पहला आता है should be valid and second is should be reliable, third one is should be sensible and fourth one is a should be specific and fifth one is a feasible and sixth one is a should be relevant. तो सबसे पहली बात करते हैं morbidity इंडिकेटर मतलब ये होता है कि लाइक हम जो मृत्यु दर हिंदी में कहते हैं, मृत्यु दर को मेजर करने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इनको करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम मृत्यु दर को। रोल नंबर 57 प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ज्योति सिंह म्यूट करो खुद को। ओके स्टार्ट। यश मैम तो मृत्यु दर को मेजर करने के लिए हम यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इनको मेजर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने टोटल मृत्यु दर को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है जो कि है क्रूड डेथ रेट मींस की नंबर ऑफ अ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन एंड सेकंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसमें होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑन इन द डिटर्मिनेशन टू द बेबी मींस कि बच्चा जब पैदा होता है उसके दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि मदर की डेथ हो जाती है, तो उस डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि जब बच्चा पैदा होता है लाइक नवजात बेबी, तो उसे हम इस रेट के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड फिफ्थ वन इज डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। सेकेंड आता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स मींस की हम इसमें अपने डिजीज की जो काउंटिंग रहती है लाइक रोगों की संख्या उसे हम कर सकते हैं। तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स के थ्रू लाइक नंबर ऑफ पीपल को डिटरमिनेशन कर सकते हैं। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स को यूज करने से पहले हमें मॉर्बिडिटी रेट पता होनी चाहिए। तो इन जितने भी सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स की क्या है। तो फिर सबसे पहला जो इसमें आता है इंसिडेंस मींस की कोविड सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस बार का कोविड। लाइक कोविड 2019 से आया, तो ये लगभग 2020 एंड 2022 को लाइक ये सब है। तो इसमें हम इसे मतलब कोविड कितनी बार आ चुका है हम इसे इसके द्वारा पता कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है प्रीवेलेंस, इसका मतलब ये होता है कि हम इसे कितना बचाव कर सकते हैं फिर इसे कितना बचाव हुआ। एंड थर्ड इज नोटिफिकेशन, लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि कोविड जिसको हुआ है तो बहुत लोगों ने क्या किया है, बहुत लोगों ने अपना नाम खुद रजिस्टर करवाया कि हमें कोविड हुआ है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बताया नहीं कि हमें कोविड हुआ है। तो इसकी मतलब नोटिफिकेशन वाले हमें एक जानकारी पता चलती है कि इसमें क्या होता है। फिर अटेंडेंस रेट, लाइक कितने लोग डेली विजिट कर रहे हैं, इसमें इसका
डाटा स्टोर रहता है। फिर एडमिशन एंड डिस्चार्ज मीन्स कि हॉस्पिटल में उन्हें कब लाया गया और कब डिस्चार्ज किया गया। फिर आता है डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, लाइक डिसेबिलिटी का सीधा मतलब है विकलांगता, मीन्स कि एक पीरियड के दौरान आप कितना काम करने में लाइक असमर्थ होते हैं, तो उसे हम डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स के द्वारा कहते। इसमें आता है दो टाइप, इवेंट टाइप इंडिकेटर्स एंड पर्सन टाइप इंडिकेटर्स। इवेंट टाइप इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ डेज ऑफ रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी, लाइक मतलब डॉक्टर के पास हम गए कुछ किसी चीज का इलाज करने के लिए और डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको इतने टाइम में लाइक इतना ही काम करना है। अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको आंख का प्रॉब्लम है तो आप टीवी और फोन कम चलाइए, तो हमें भी मतलब वो जस्ट छोड़ के बाकी हम और कोई भी काम कर सकते हैं। एंड सेकंड आता है पर्सन टाइप इंडिकेटर्स, लाइक टोटली बेड रेस्ट जरा सा भी नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ वन आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, लाइक हम इसमें सबसे बेस्ट है कि जब हम स्कूल में लाइक एंट्री लेते हैं या फिर हमारी जितनी हाइट बॉडी जितनी भी है इसमें हम उसको मेजर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज अ हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, लाइक कि कितनी डिलीवरी हो रही है इसको कैसे मेजर करना है, ये सब इसमें आता है। तो इट इंक्लूड्स मतलब कि डॉक्टर एंड पॉपुलेशन रेट का जो पर्टिकुलर एरिया में कितने डॉक्टर एंड कितने पॉपुलेशन है, कि ऐसा तो नहीं है कि लाइक उस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है एंड डॉक्टर कम है, तो इसका हम रेशियो पता करने के लिए हम इसको इस रेट का यूज किया जाता है। एंड सिक्स्थ वन इज अ यूटिलाइजेशन रेट, मींस की यूज करना, यानी कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हेल्थ, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि लाइक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ से ही रिलेटेड रहनी चाहिए, ना कि अनयूटिलाइज रेट होनी चाहिए। तो ऐसे इसे एक्सप्रेस इस तरीके से किया जा सकता है कि जैसे कि नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने लोग हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विस का बेनिफिट ले रहे हैं और कितने लोग हैं जो कि अपना हेल्थ केयर सर्विस का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। फिर सेवेंथ आता है सोशियो एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स, मींस को इनको मेजर करने के लिए एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, मतलब ये इंडिकेट्स करता है सुसाइड, होमिसाइड, अदर एक्ट ऑफ वायलेंस एंड अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। एंड एट वन इज एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, लाइक कितनी पॉपुलेशन में ऐसे लोग हैं जो कि एकदम मिनरल वाटर पी रहे हैं और कितने लोग ऐसे कि जिन्होंने लाइक सैनिटाइजर की जो अपने को ये मिली है फैसिलिटी, इसको कितने लोगों ने मतलब यूज किया है, और इस तरीके से हम इन्वायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स को मेजर कर सकते हैं। फिर लास्ट वन आता है सोशियो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स, तो इट इंक्लूड्स रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजेस, लाइक कितने लोग इस रेट में कम हुए हैं, फिर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बेरोजगार हैं, एंड लास्ट वन इज अ डिपेंडेंसी रेट, मींस कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड है। थैंक यू मैम। यश मुझे होस्ट करो आप। ओके मैम। नेक्स्ट रोल नंबर 8 प्रेजेंट। Yes, ma'am. Are you prepared? Yes, ma'am. Okay, start now. Good morning, ma'am. I'm Shruti Santosh Pankar. I'm going to do seminar on demography. Demography means the scientific study of the human population, which includes changes in the population size, composition, and its distribution. Demography processes are of 5 types, deals with 5 types: fertility, mortality, marriage, migration, and social mobility. The demographic cycles are of 5 stages. First, high stationary. It deals with the high birth rate and high death rate. India was in this stage till 1920. And early expanding is the second stage, which deals with the death rate begins to decline and birth rate with no changes. Late expanding is the third stage, which deals with the birth rate starting to decline and while the death rate still decreases. In low stationary, it is the fourth stage. In this, there is a low birth rate and low death rate.
And decline is the fifth stage, which deals with the birth rate is lower than the death rate and it falls continuously. Methods of data collections are of two types: primary data collection and secondary data collection. In primary data collection, there are observation interviews, questionnaires, or diaries. And in secondary data collection, there is national survey or registration of the vital events, demographic studies, and records. And elements of the population is the changes in size of population, structure of population, and geographical studies. Thank you, ma'am. मुझे होस्ट करो श्रुति. रोल नंबर 2 शिशु कुमार, आर यू प्रिपेयर्ड? यस मैम, अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ, पर मैंने कुछ ये नहीं किया ना, स्लाइड्स क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया? मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक कहा था ना सेमिनार के लिए. आप लोग कैसे सेमिनार दे रहे हो? ऐसे सेमिनार दिया जाता है सॉरी क्या? सॉरी. स्टार्ट मैम, नाउ. मैं कल पूरा कल क्यों? अभी आपका आज रोल नंबर 1 to 10 आज है ना? क्यों टाइम टेबल नहीं है आप लोगों के पास? कल है, मेरा एसपी का लेक्चर है क्या कल? तो कल आप दोगे? No, ma'am. फिर हम स्टार्ट करो, ट्राई करो. स्टार्ट नाउ. हम ये क्लासरूम में मैम जो आपने किया है उससे करो. ओके, कर सकते हो. वेट, मैं तुम्हें होस्ट कर दूं पहले. ओके, स्टार्ट नाउ शिशु कुमार. एक मिनट मैम, ये hello ma'am, my name is Shishi Kumar and today I'm going to give seminar on demography and family planning. Demography and family planning. Demography is the scientific study of human population in which it includes study of changes in size, in population size, composition and its distribution. Demography is a word derived from two words, demo and graphy. Demo means the people and the graphy means measurement. Importance of demography. Health status of a community depends upon a dynamic relationship between number of people, their composition and distribution. जो हेल्थ स्टेटस होता है कम्युनिटी का, वो डिपेंड करता है उनके रिलेशनशिप और नंबर ऑफ पीपल पे और उनके कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे. Planning of health services can be guided by demographic variables. For example, how many health units do we need, how to distribute them in the community in order to accessible to the target population, what type of manpower is needed. जो प्लानिंग होता है हेल्थ सर्विस का, वो गाइड कर सकते हैं अपन डेमोग्राफिक वेरिएबल से, जैसे कि हेल्थ यूनिट्स कितने चाहिए और उनको डिस्ट्रीब्यूट कम्युनिटी में कैसे करना है, उनको एक्सेस कैसे करना है पॉपुलेशन, टारगेटेड पॉपुलेशन के साथ, और कौन से मैन पावर नीडेड है हमको. उसके बाद है डेमोग्राफिक प्रोसेस. इट डील्स विद द 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस. डेमोग्राफिक प्रोसेसेस जो है वो 5 प्रोसेसेस है जिसके साथ वो डील करते हैं. फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन और सोशल मॉर्बिलिटी. और डेमोग्राफिक साइकिल, जो साइकिल है स्टेज, वो फर्स्ट स्टेज है जिसको हाई स्टेशनरी बोलते हैं. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, नो एनी चांस इन साइज एंड पॉपुलेशन. ये जो स्टेज है ये कैरेक्टराइज्ड है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, तो नो एनी चांस इन साइज एंड in size and population. India was in this stage
टिल 1920। ये स्टेज तक इंडिया 1920 तक यही स्टेज में था। और अर्ली एक्सपेंडिंग सेकंड स्टेज को अर्ली एक्सपेंडिंग कहते हैं। द डेथ रेट begins to decline, start decreasing and birth rate no change। जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, जिसका मतलब है। एंड बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं आता है। इनिशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा इनिशियली इंक्रीज आता है। फिर लेट एक्सपांडिंग थर्ड स्टेज है, इसको लेट एक्सपांडिंग कहते हैं। द बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन while the death rate still decreases। जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन होता है, मतलब थोड़ा इनिशियली कम होता है, स्टार्ट डिक्रीजिंग। और जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज होता है। अहमद, और पॉपुलेशन का जो है देख कॉल आ increase होता है। लो स्टेशनरी फोर्थ स्टेज में जो है लो बर्थ रेट रहता है और लो डेथ रेट रहता है, पर पॉपुलेशन जो है स्टेबली चलते रहता है। जो फिफ्थ स्टेज है उसको कहते हैं डिक्लाइनिंग। उस स्टेज में बर्थ रेट कम रहता है एज कंपेयर टू डेथ रेट, और पॉपुलेशन जो है वो कम होता रहता है। और फिर ये बस मैम इतनी। Okay. थैंक यू। Next roll number 9 present. Roll number 9, 10. Roll number 10. Okay, we'll put absent. ठीक है. Next roll number 11 to 20 and 11 to 66. Anyone be prepare? कोई prepare है सेमिनार के लिए? After roll number 10. Am I audible to you everyone? Anyone has to be prepared? कोई प्रिपेयर है क्या सेमिनार के लिए? आज दे सकता है और कोई सेमिनार? देखिए, मैंने अभी जब आप लोग सेमिनार दे रहे थे उस ड्यूरेशन में मैंने नोटिस किया है आप लोग क्या कर रहे हो, मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है अटेंडेंस हो रहा है, फाइन। मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, देख रहे हो अटेंडेंस नहीं हो रहा है, इमीडिएट लेफ्ट हो रहे हो, ठीक है। रोल नंबर 1 to 10 में मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है। जिसने सिर्फ सेमिनार दिया है रोल नंबर 1 to 10 उनका ही सिर्फ अटेंडेंस लगेगा, अदरवाइज सब जो भी है वो एब्सेंट। नेक्स्ट जो है ट्यूसडे लेक्चर नहीं है, वेडनेसडे आई थिंक रिपब्लिक डे है। थर्सडे रोल नंबर 11 to 20 and 21 to 30 बिकॉज 11 to 20 में एक दो प्रेजेंट होंगे, बाकी सब एब्सेंट होंगे। 21 to 30 ये टोटल 20 स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर रहना थर्सडे सेमिनार के लिए, ओके। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। रोल नंबर 11 to 20 and 21 to 30। फाइन, सबने सुना मैंने क्या कहा? ओके मैम। यस मैम। यस यस मैम। अगर इसमें से एब्सेंट रहते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें क्या आंसर करना है। जैसे आज मैंने इग्नोर कर दिया, आज मैंने थोड़ा लाइट लिया है, ऐसे अभी डेली नहीं होगा। अभी जिन्होंने सेमिनार नहीं दिया है, ठीक है, किस रोल नंबर 5 ने दिया है, 7 ने दिया है, 8 ने दिया है। रोल नंबर 2, 5, 7, 8 ओनली 4 स्टूडेंट्स आते हैं ना। नेक्स्ट जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, ये इनका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें क्या आंसर करना है, इन्होंने क्यों सेमिनार नहीं दिया है, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सरप्राइज था क्या ये कुछ,
मैंने लास्ट वीक ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ना कि आपको नेक्स्ट वीक से सेमिनार देना है. Yes, ma'am. ठीक है. और मीटिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, जैसे ही सेमिनार वर्ड यूज किया मैंने स्टार्ट किया, वैसे ही फटफट लेफ्ट किया आप लोगों ने. ठीक है. सो अभी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या आंसर करना है. अटेंडेंस मैंने देखा है कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है. ठीक है, मुझे अटेंडेंस दे दो अभी आप लोग. सेशनल जो है, वेट एक सेकेंड. नेत्रा आपने पूछा ना. Yes, ma'am. देखिए अभी तो रिसेंट में फर्स्ट सेशनल आपका हुआ है. सेकंड सेशनल का डेट जब डिसाइड होता है, ठीक है, फैब में है या मार्च फर्स्ट वीक में है, उस ड्यूरेशन लिस्ट तक में आ आपका गया। जो भी. मैम Sorry? लिस्ट आ गया। लिस्ट मैम मिला मैं है? मतलब मैम रोही मैम ने भेजा है मैम कुछ तो अच्छा अच्छा. मार्च ठीक में है. करके सिलेबस देखिए, आपको कम्युनिकेबल डिसीजेज है, नोट डाउन. ठीक है. एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज. नेक्स्ट इन रखोगे हम इधर में. इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक रिमेनिंग था, मैंने कराया था. ठीक है. इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट. एंड डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग. ओके. ओके मैम. रिमेनिंग अभी जो टॉपिक कवर होगा, ठीक है, जैसे ही होगा आपको स्टाफ, जो भी दूसरा स्टाफ होगा या अगर मैं ही कवर कराती हूँ तो मैं ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. ठीक है. Okay, ma'am. Thank you so much. ठीक है. अटेंडेंस एक मिनट.